بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم میں بندے عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندے عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا آج میں پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا ایونٹ سجایا، اور ان کی پوری ٹیم قابل مستحق ہے مبارکباد کے کہ جنہوں نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا۔ بلوچ صاحب کا، عرفان شکور صاحب کا اور جان عالم صاحب کا کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ عہد کرتا ہوں کہ میں باحیثیت آپ لوگ اپنے پوسٹ دہرائیں اور نازم آباد ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے دستور کی پابندی اور اغراض و مقاصد کی تکمیل اور حصول کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو پروکار لاؤں گا اور ایسوسی ایشن کے مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دوں گا۔ انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، مبارک ہو۔ میں باحیثیت چیف الیکشن کمشنر تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اغراض و مقاصد کے تکمیل میں اپنی کارروائی مضبوطی کے ساتھ انجام دیں ان کی سالہ برداری میں۔ اور میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں ڈی جی کے ڈی اے جو آج یہاں تشریف فرما ہے، فیڈریشن کے تمام لوگ اور کراچی کے تمام ممبران، علاقائی یونینز ہیں ان کے ممبران، اور ان سب کا میں شکر گزار ہوں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، ڈی جی کے ڈی اے چونکہ موجود ہوں، 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز کے فیصلے جو ہے کنورشن آف پلاٹ کمرشلائزیشن کو ایک طریقے سے ختم کر دیا انہوں نے۔ حالانکہ میری نظر میں باحیثیت وکیل ہائی کورٹ اور ماشاءاللہ سپریم کورٹ بھی ہوں تو میں سمجھتا ہوں وہ فیصلہ بالکل غلط تھا، لیکن ایم پی اے جی او والوں نے بر وقت اپلائی نہیں کیا، بر وقت پروسیڈ نہیں کیا، حاضر نہیں ہوئے، جس سے اس کو ریویو کا موقع نہیں ملا۔ آج وہ فیصلہ یوں ہی برقرار ہے۔ میری گزارش تمام جو ایسوسی ایشن کے افراد یہاں حاضر ہیں ان کے لیے بھی کوشش کی جائے کہ یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے، پورے سندھ کے لیے پابندی ہے۔ ایک طریقے سے اگر سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر ہوتا ہے تو پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے۔ میری گزارش یہی ہوگی، اگر آباد والے بھی موجود ہیں اور ہمارے دیگر دوست، کہ سب سے پہلے یہ سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہے اس کے لیے
रिव्यू के कोई तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए या उसके लिए एप्लीकेशन दी जाए, पार्टी बनाया जाए, ताकि ये कमर्शलाइजेशन कन्वर्शन की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो। कराची के 90% काम हो चुके हैं, सिर्फ 10% ही रह गए हैं और लोग परेशान हैं, काम नहीं हो रहे हैं और दीगर लोग उससे फ़वाइद हासिल करते हैं। All नाज़माबाद प्रॉपर्टी एंड स्टेट डीलर्स एसोसिएशन की ओथ टेकिंग सेरेमनी है। उनकी तमाम काबीना बाशमूल प्रेसिडेंट सैफुद्दीन भाई, उनके चेयरमैन आरिफ पटेल साहब, जनरल सेक्रेटरी शकील मेमन साहब और उनके पैट्रन इन चीफ साबिर शाह साहब और उसकी तमाम काबीना जिन्होंने आज की ये महफिल सजाई है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ हमारी ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की जितनी इलाही एसोसिएशंस और उनके प्रेसिडेंट और चेयरमैन जो आज की तकरीब में मौजूद हैं, कराची के रियल्टर्स जो कि हमारी कम्युनिटी है, उन तमाम लोगों को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। नाज़माबाद की जो एसोसिएशन है, ये ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन की बानी एसोसिएशंस में है। हमारे साथ नॉर्थ नाज़माबाद एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान आलम साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के बानियों में से हैं। ये सफ़र जो हमने तकरीबन 4 साल कबल स्टार्ट किया था, उसमें 7 बेसिक एसोसिएशंस थी जो कि कराची के रियल एस्टेट डीलर्स को रिप्रेजेंट करती थी। उन्होंने इस एसोसिएशन जो मरकज़ी एसोसिएशन है कराची की, उसकी बुनियाद रखी थी। आज माशाल्लाह कराची शहर की 19 रियल एस्टेट डीलर्स एसोसिएशन आल कराची का हिस्सा बन चुकी हैं। 2 महीने पहले जब मुझे चार्ज मिला तो उस दिन से मेरी कोशिश ये है कि मैं इस इदारे को इसकी जो पुरानी हैसियत है उसको जो है बहाल किया। अच्छा, नॉर्मली जो डीजी है वो बाहर से आते हैं, उनकी इंटेंशन भी गलत नहीं होगी, लेकिन मेरा इसमें कहना ये है कि अपने घर से जो मोहब्बत इंसान खुद को होती है वो पड़ोस वाले को नहीं हो सकती। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रेशर भी आएंगे कि सीट ऐसी है, और मोस्टली लोग जो मेरे पास आते हैं वो आते हैं प्लाटों के लिए, ऑल्टरनेट के लिए। आपके सामने डीजी केडीए भी मौजूद था और वो बात कर रहा था, तो ये आपकी जीत थी कि ये वो डीजीज हैं जो आपको टाइम नहीं देते, आपसे मिलते नहीं थे, लेकिन आज अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस काबिल बनाया। आप अपनी टीम का, अपने लीडर्स का मैं समझता हूँ कि साथ में हौसला बढ़ाएं कि आज वो इस मकाम पे कि आज डीजी, अभी मैं से पहले यहाँ कह रहा था कि मैं कमेटी भी बना रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ें भी मैं आपके साथ ऑनबोर्ड करूँगा। और हमने एक होमवर्क किया था, मेरा वादा था आपके रियल्टर्स भाइयों से, आपके प्रेसिडेंट से और कराची के, कि मैं जो वज़ीर बल्दियात हैं मुबीन जुमानी साहब, ये काम उन्हीं से होना है, उन्हीं से कराना है। और मैंने उनसे बात की है, कोई हम आपसे कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई इमदाद नहीं मांग रहे, हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस शहर में ये जो आप कहते हैं कि फाइलें गुम हो जाती हैं, रिकॉर्ड गुम हो जाता है, और कुछ लोग माफिया के तरह इन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हम किसी के अंडर में नहीं है, तो मैं उन लोगों से भी कहता हूँ कि अब वक्त बदल गया है और हम इन लोगों को जो दीमक की तरह इदारों को चाट रहे हैं या दीमक की तरह इदारों को खा गए, इंशाअल्लाह ताला चाहे केडीए हो, चाहे एफडीए हो, चाहे एलडीए हो, तमाम मैं उन डिपार्टमेंट की बात करता हूँ जिनसे मेरे रियल्टर्स का वास्ता पड़ता है, हम उन इदारों से उन दीमक को भी जो है साफ करेंगे इंशाअल्लाह। तो केडीए में भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मिलनी चाहिए, और सिर्फ केडीए में नहीं मिलनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि वज़ीर बल्दियात जो है वो ख़ास तौर पे कोई एक ऐसा शोबा बना दें रियल्टर्स के लिए कि उनको हुकूमत सिंध की तरफ से ये कार्ड मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अथॉरिटी की तरफ से नहीं होना चाहिए। और हम करेंगे इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हुकूमत सिंध रिकग्नाइज करे और आप लोगों को रजिस्टर्ड करे। पूरी दुनिया में कोई भी रियल एस्टेट एजेंट बगैर रजिस्ट्रेशन के काम नहीं कर सकता, और ये हम अपने भले के लिए नहीं कह रहे, हम बात कर रहे हैं मईशत के लिए, क्योंकि हमारे साथ इतने मसले मसाइल हो गए कि हम कारोबार की तरफ से तवज्जो हमारी हटती जा रही है जो टैक्सेस के हवाले से। लेकिन इस वक्त हमारे पास हमारी खुशकिस्मती है कि मैं बड़े दिन से लगा हुआ था प्रॉपर्टी वैलेट के पास, ताकि उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, उसके अंदर उसमें एक आम डीलर जो है उसके अंदर उसको इतना पूरा डेटा है, किसी इसको स्टेट एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी मतलब कोई परेशानी में मुब्तला नहीं होगा। इसकी डिटेल प्रॉपर्टी वैलेट के नुमाइंदे यहाँ हैं, उनसे आप हासिल कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसका हिस्सा बने प्रॉपर्टी वैलेट का, क्योंकि हमारा एक सौदा, जैसे अगर हम कोई 80 गज का सौदा देते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं, पार्टी को फोन करते हैं, कोई दूसरा उठा के वो सौदा ले जाता है, लेकिन इसके अंदर सिस्टम ऐसा है
हमारी चीज हमारे पास महफूज रहेगी, वो चीज एक तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड में भी चली जा सकती है। और उसके जैसे 80 गज का मकान है, अगर हम 80 गज पे क्लिक करते हैं तो वो पूरा 80 गज के जो भी बायर होगा वो उस तक जाएगा, वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेगा। उन सबको जो है डिफक्लेरिया की तरफ से जो है दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूनिटी पैनल जो है ये इस जो है रुए रवा है कि पूरा का पूरा पैनल जो है वो जीत के आया है और इसका नाम भी यूनिटी है। तो मुझे बड़ी एक अजीब सी खुशी हुई कि ये यूनिटी जो है वो हर जगह जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है, कि ऐसा लगता है कि नाज़ाबाद ने जो आल नाज़ाबाद है इसने सबसे बड़ी इसकी जो कामयाबी है और हम इसको हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं, चाहे कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो ये है कि ये कामयाब हो गए इस बात में कि इन्होंने सबसे पहले जो है जो मुंतखब इदारे हैं जिसके अंदर इनकी जो है नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, और वो है केडीए, क्योंकि केडीए के अंदर जो है वो नाज़ाबाद का जो है लाज़िम व मज़लूम होना है, और उसके आज डीजी का यहाँ खड़ा होना इस बात की गवाही है कि नाज़ाबाद एसोसिएशन ने अपना लोहा जो है वो पूरे नाज़ाबाद में और पूरे कराची में मनवा लिया है। मेरी पूरी एसोसिएशन की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो, और अगले 2 साल के लिए आप लोग जिन जिम्मेदारियों पे फाइज हुए, अल्लाह पाक आप लोगों को ये तौफीक और इस्तकामत दे कि आप अपने मेम्बरान की तवक्कात और उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। माशाल्लाह इस वक्त बड़ी शख्सियात मौजूद है यहाँ पर, और तमाम कराची के सरकर्दा लोग मौजूद हैं। डीजी केडीए नवीद अनवर साहब अपनी स्पीच में बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो उनको रिकमेंड की गई थी उसका वो वादा करके गए हैं कि इंशाअल्लाह ताला तमाम तजावीज़ पे अमल दरामद होगा। अगर उन पर अमल दरामद हो जाता है तो समझ लें कि ये आपके इत्तेहाद की जीत है, रियल्टर के इत्तेहाद की जीत है। सारे शोबे कराची में या पाकिस्तान में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने शोबे के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक शोबा रियल इस्टेट का है जिसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। कोई भी शख्स जो है वो उठता है और इस्टेट एजेंट का काम कर लेता है, वो उसका ऑफिस नहीं होता, वो रियल इस्टेट से ताल्लुक़ नहीं करता, लेकिन रियल इस्टेट के बिज़नेस में घुस जाता है और वो काम करता है। और ख़ास तौर पर हमारे इलाक़ों में ये बुराई बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं यहाँ मौजूद तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मुत्तहद होकर हुकूमत सिंध से इस बात पे पुरजोर मुतालबा करें कि कोई इस तरह की एक मिनिस्ट्री बनाई जाए जो रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन से मुतालिक हो, और उसके तहत जिस तरीके से आबाद के लाइसेंस दिए जाते हैं और आबाद के लाइसेंस होल्डर ही जो है वो हाई राइज बिल्डिंग बनाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हुकूमत सिंध जो है वो रियल इस्टेट बिजनेस करने वालों को एक लाइसेंस इजरा करे जो सालाना बुनियादों पर उसकी तजदीद हो सके, और सिर्फ रियल इस्टेट एजेंट जो लाइसेंस पीरियड हो वो रियल इस्टेट का काम कर सके। उसके अलावा किसी भी कोई गैर मुतल्लिक़ शख्स को स्टेट एजेंसी का काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। समझ लें जिस दिन ये कानून पास हो गया आपका जो है वो कारोबार जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के अमल में दाखिल हो गया। ये चीज़ हम सबको सोचनी चाहिए, क्योंकि हमें सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं लोगों से पहुंच रहा है जो वो किसी भी अमल में जो है किसी भी मुआवजे पे काम कर लेते हैं और उनका ना कोई ऑफिस होता है। कराची ताजिर इत्तेहाद है कराची के ताजरों की बहुत सारी अलायंसेस बनाए, इलाकाई, फिर उसके बाद जोनल, फिर शहर के लिए, फिर मुल्क की सतह पर भी हम बहुत सारी तंजीमों के साथ मुंसलिक हुए। और 35 साल में मैंने एक ऐसी ज़वाल पजीरी का मंजर देखा कि जैसे कोई चीज़ ज़वाल की तरफ आती है, इत्तेहाद टूटने लगे, लोग लीडरशिप, हर बंदा लीडर, जैसे मैकेनिक का एक छोटा होता है ना, वो भी जो बोल्ट कसता और इंजन खोलता है, उसने भी अलग अपने वर्कशॉप्स खोल लिए हैं। इस तरह का एक मजमा आप भी देखते होंगे, एक मंडी सी लगी हुई है इत्तेहादों की। लेकिन ये इतने सारे कुमकुमे ये बल्ब लगे हैं, वही अहमियत रखता है जो रोशन, जो जल रहा है। बहुत सारे इत्तेहाद में बनते देखता हूँ, फिर बिगड़ते भी देखता हूँ, आपस में मुंतशिर होते भी। उसकी वजह सेक्रीफाइस को नहीं करता, जबकि ये जितनी भी तंजीमें हैं बेसिकली ये वेलफेयर का आंसर है। जिसे अल्लाह पाक ने पुराने पाक में फरमाया कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की भलाई के लिए उतारा गया है। फलाह और बहबूद के मामलात एसोसिएशंस में हैं, वो किसी काम में नहीं है। मेरा हल्का PS 101 है, जिसके इलाके हैं धोराजी, भादराबाद, शरफाबाद, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 8, 9, 10, 10, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, शांति नगर, ईसा नगरी और डालमिया। आज़ादी से लेकर आज तक हमने देखे कि इलेक्शंस होते रहते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी के 2 इलेक्शन याद हैं, 2013 का, 2018 का। पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, अपना मंशूर लेकर आती हैं, मंशूर उनका बदलता है नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कराची में इस तर्ज का कोई काम ही नहीं होता कि मंशूर बदलने की ज़रूरत हो। हर इलेक्शन में वही मंशूर आता है, क्योंकि मेरे ख्याल से कराची में या तो शायद किसी को इंटरेस्ट नहीं है या वो काम करना चाहते नहीं।
मैं एक एनजीओ रन करता हूँ कराची में जिसका नाम है हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। तो उस एनजीओ के तर्ज से भी हमने हमेशा कराची वालों का साथ दिया। कराची वालों को जब भी परेशानी हुई हम उनके साथ खड़े रहे, चाहे वो कोविड का टाइम, और सिर्फ कराची नहीं, अंदरूने सिंध में भी जब सैलाब आया तो मैं खुद, यही मेरी टीम है, हम सारे नौजवान लड़के, हम खुद गए वहाँ पे और हमने एक एक घर पे जाके ज़रूरियात की जो चीज़ें जिसमें मेडिसिन हैं, खाना है, वो हमने सब पहुँचाई। मैंने ये सोचा कि अब जो कि मेरी उम्र 25 साल हो गई है और कम से कम उम्र 25 साल चाहिए आपको या तो सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या उसके फीचर्स हैं और वो किस तरह से, अगर हम कहें कि रियल एस्टेट सेक्टर की मदद कर सकती है या उसमें मुआविन साबित हो सकती है? प्रॉपर्टी वॉलेट जी, बेसिकली इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, एक 12-15 साल का सफ़र है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम आज के दौर के अंदर जो एक मीडिया का दौर तो है, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है, तो हम लोग क्यों पीछे हैं? तो उसी बेस के ऊपर ये मेरी टीम मेरे साथ बैठी है। टेक्निकल कोई क्वेश्चन होगा तो ये बताएंगे, सेल्स वाले भी इधर मौजूद हैं वो भी बताएंगे। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं कि मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि एक ऐप के ज़रिए, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम मज़ीद इसको मॉडर्नाइज वे के अंदर अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकें, और एक रियल स्टेट कंपनी या एक बिल्डर ऑफिस जो कि अगर 10 से 20 आदमी या 25 आदमी को लेके वो चल रहा है, तो वो इस ऐप के ज़रिए बगैर किसी खर्च के बढ़ाए हुए, कोई एक्सपेंस किए हुए, डिजिटली तौर पे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। ये एक मॉडर्न किस्म का CRM सिस्टम तो तकरीबन हर कंपनी के पास है, बट ये CRM सिस्टम इस किस्म का है जिसकी एक ऐप ही आ रही है। आप अपनी हर प्रॉपर्टी को, अपने प्रोजेक्ट को, बिल्डर को, जैसे आसिफ भाई यहाँ मौजूद हैं, इनके हवाले से कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप उस प्रोजेक्ट को इसके ऊपर लेके आते हैं और आप उसको मैनेज करते हैं। आपके एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपका ये प्रोजेक्ट, आपकी जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो वहाँ का काम करने वाले हैं, उन तक पहुँचेगा। और एक रियल स्टेट के हवाले से अगर मेरे पास उसका मैंने एक्सेस मेरे पास है, तो मैं फ्रीलांसर के तौर पे या अपने ओपन जो मेरे एजेंट्स हैं, मेरी ऑफिस है मेरे डिफेंस के अंदर, मेरा एक प्रोजेक्ट है वो सरजानी के अंदर आया, तो मैं सरजानी के अंदर अपना ऑफिस फुल ऑपरेट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस ऐप के ज़रिए अपने आदमियों को अपॉइंट करूँगा, उनको मॉनिटर करूँगा, उनको प्रोडक्ट दूंगा, वो बेचेंगे। और प्रॉपर्टी वॉलेट जो है वो पूरे कराची के अंदर 10 जो है वो एग्जेक्टिव लाउंजेस बनाने की तरफ जा रहा है, जिसमें से पहला लाउंज जो है वो DHA 26 स्ट्रीट के ऊपर ऑलरेडी रेडी है, दूसरा जौहर मोड़ के ऊपर बन रहा है, तीसरा सरजानी की तरफ, यानी कि 4 लोकेशन हम लोग कर चुके हैं। तरीक़ेकार ये है कि आपके आदमी ने कोई चीज़ डील की और वो चाहता है कि आप इसको कंक्लूड करना है, तो सरजानी से उसको DHA में आपके ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने प्रॉपर्टी वॉलेट के लाउंज में जाएगा, उसके पास अपनी ID होगी, बायोमेट्रिक के ज़रिए वो उसको एक्सेस करेगा, प्रोजेक्ट की सारी डिटेल होगी, कस्टमर को वहीं पे वो सारी ब्रीफिंग देगा। इवन उसमें इतनी चीज़ें हैं टेक्निकली तौर पे भी कि आपने अगर उसमें कोई पेपर वर्क करना है वो वहीं पे करे, कोई टोकन लेना है अपनी कंपनी के नाम का, वहीं से अपनी कंपनी की रिसिप्ट देगा। तो ये इसमें इतनी चीज़ें हैं कि वो शायद उसके लिए मुझे कई घंटे चाहिए हों। अगर आप इस सिमत अगर सफ़र जारी रखेंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी है, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको पैसे मिलते हैं इन कामों के, वो कैसे विड्रॉ करेंगे, अपना हैंड छोड़ेंगे। तो जितनी भी एजेंसीज़ हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट जो फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें वो सारे फीचर्स हैं, जिसमें एक रियल एस्टेट एजेंसी को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मार्केट करने के लिए, सेल्स करने के लिए सारे फीचर्स हम लोगों ने इसमें डाले हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी वॉलेट की जो प्रोडक्ट साइड है, जो ऐप बनाने वाली साइड है, वो ज़्यादातर मैं देखता हूँ। अपने तमाम कमीशंस हो गए, अपनी इवन तो अपनी एजेंसी की जो उसकी ब्रांडिंग है वो भी वहाँ मैनेज कर सकता है, और उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी तमाम ब्रांडिंग वो अपनी चेंज करना चाहे वो चेंज कर सकता है, बिजनेस कार्ड्स बनाना चाहे, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, लेटर्स बना सकता है, ये तमाम चीज़ें उसको वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर उसको इन्वेंट्रीज़ की ज़रूरत है तो हम इन्वेंट्रीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास तमाम 3-4 बिल्डर्स हमारे पास ऑन बोर्ड हैं, और भी हमारे पास ऑन बोर्ड इंशाल्लाह आते रह रहे हैं, 10 से 15 पाइपलाइन में हैं, तो वो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, उनको बिल्डर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से वो बुकिंग भी कर सकते हैं और इन्वेंट्री को देख भी सकते हैं। कि नौजवान अगर पाकिस्तान के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो इनके लिए भरपूर तारीख है, क्योंकि पाकिस्तान से तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हम इनको रहनुमाई जो है वो ज़रूर जो है वो फराम कर सकते हैं, और ये भी जो है वो डिक्लेरिया को एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले अगर रियल इस्टेट का मैगज़ीन जो है वो निकला तो वो डिफेंस क्लिफ्टन से निकला, और आज उसी को देखते हुए जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। इस प्रॉपर्टी के उसके अंदर जो है वो 2 सेक्शन है। एक तो वो है कि जो आप दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट ये है, इतनी मंजिला है, इसके अंदर ये फ्यूचर्स हैं, इस तरीके से, तो वो तो बहुत आसान काम है और वो सब लोग कर भी रहे हैं। असल बात जो है वो प्रॉपर्टी की एग्जीक्यूशन है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी लीज़ है, उसके जो है मोटेशंस हैं,
उसकी जो है एथेंटिसिटी है उसके डॉक्यूमेंट्स की, तो वो जब तक आपको इदारों से जो है वो एक्सेस मैसर ना हो, तो इस तरह से बहुत सारे वो हैं, हम इनको अपने एसोसिएशन में इंशाल्लाह दावत देंगे डिस्क्लेरिया में कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए अगर वो गौर से सुने तो मेरा ख्याल में कि ये सवाल करेंगे, क्योंकि ज़मीन.com के जितने भी डसे हुए लोग हैं जो रियल्टर्स हैं खास तौर पे, उनको शिकायत नहीं आई और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो ज़मीन.com है वो एक ऐप या उसका नहीं रह गया बल्कि वो एक ब्रोकरेज हाउस बन गया और वो पूरे पाकिस्तान में आज आपके और मेरे पैसे से बना फला फूला और आज वो रियल्टर बन गया है वो एक किस्म का। तो एक ब्रोकरेज हाउस के तौर पे वो काम कर रहे हैं। मेरा ये होगा कि आप लोग जब ये करेंगे तो उसमें जितने भी हमारे जो रियल्टर्स भाई हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि उनका डेटा आप ना यूज़ कर सकें या उनका डेटा कोई और आपके उस पर यूज़ ना कर सकें। जैसे अभी साहब ने बताया था कि हमारा जो डेटा है वो उठा के सरकारी अवानों में दे दिया गया और उससे जो है हमारी जो हुई और सारी चीज़ें टैक्सेस में हमें प्रॉब्लम हुए वो हम सफ़र कर रहे हैं और आज तक सफ़र कर रहे हैं।